So hello friends, my name is Midhavi and I'm cost and management accountant. इससे पहले वीडियो में अपन ने पूरा चैप्टर डिस्कस किया था. Now क्वेश्चन आंसर्स टाइम. ठीक है, हम एक एक क्वेश्चन को आराम आराम से समझेंगे. ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं विदाउट वेस्टिंग मच टाइम. फर्स्ट क्वेश्चन, which of the following is not one of the three types of the decision facing the financial manager in the company? कौन सा ऐसा डिसीजन जो कि फाइनेंशियल मैनेजर फेस नहीं करता? हमने देखा था कि तीन तरह के डिसीजन फाइनेंशियल मैनेजर फेस करता है. कौन कौन से थे वो? इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग एंड डिविडेंड. तो इनमें से कौन सा नहीं है? इकोनॉमिक डिसीजन. ठीक है. The agency problem is driving. Question number 2. The agency problem is driving force behind the growing importance attached to the sound corporate governance. Agency theory पढ़ी थी ना अपन ने. तो हमने पता किया था कि एजेंट्स कौन होते हैं. Managers are the agents of the shareholders. Shareholders are the principals. So who is the agent? Agent are the managers. Question number 3. Which of the following is an example of financial objective that the company might choose to pursue? इसका आंसर आप बताएंगे. ठीक है, मैं ऑप्शंस पढ़ लेती हूँ. आपके पास 1 मिनट का समय, आप आराम से आंसर सोचिएगा. Provision of the good wages and salary, dealing honestly and fairly with the customers on the all occasion, producing environmental friendly products, restricting the level of gearing to below a specified target level. Financial objective. ये ध्यान रखिएगा कि तीन तरह के फाइनेंशियल डिसीजंस लेते हैं अपन, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग और डिविडेंड. उससे ही रिलेटेड इसका आंसर है. तो 1 मिनट दिया आपको, आराम से सोचिए और आंसर बताइए. अब तक आंसर आ ही गया होगा आपके पास. So the answer is restricting the level of gearing to below a specified target level. ये आंसर ये क्यों है? हमने फाइनेंसिंग डिसीजन में देखा था कि डेट और इक्विटी का कॉम्बिनेशन क्या रखेंगे. हमें पता है कि गियरिंग क्या होता है, लेवल ऑफ गियरिंग क्या होता है कि डेट का प्रोपोर्शन एज कंपेयर टू द इक्विटी. So it's a kind of a financial objective. We have to just restrict our level of gearing so as to a specified target level. तो कंपनी को फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव यही चूज करना चाहिए. ठीक है. Provision of services for good salary and wages does not form part of financial management. Dealing honesty with the customer is a non-financial objective, which we have already discussed. Producing environmental friendly products is a non-financial objectives, which we have already discussed in the previous video. आगे बढ़ते हैं. Question number 4. In the context of the managing performance in not-for-profit organization, which of the following definition is incorrect? हमें पता है कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वैल्यू फॉर मनी के लिए वर्क करता है और वैल्यू फॉर मनी के लिए तीन एस्पेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है. कौन से तीन एस्पेक्ट्स? 3 E's में से सबसे पहला क्या है? इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी एंड इकोनॉमी. तो हमें इस क्वेश्चन में बताना है कि कौन सी डेफिनेशन गलत है. ठीक है. Value for money means providing service in a way which is economical, efficient and effective. It's correct. Economy means doing things cheaply, not spending $2 when the same thing can be bought for $1. It's correct. Efficiency means doing things quickly, minimizing the amount of time that is spent on a given activity. Efficiency means the input-output ratio. ठीक है. अगर इनपुट आउटपुट रेशियो को डिफाइन करने के लिए अपन एफिशिएंसी यूज करते हैं. आंसर आपको पता चल ही गया होगा कि यही गलत आंसर है इसमें. थर्ड फिर भी हम डिस्कस कर लेंगे. फोर्थ पॉइंट, इफेक्टिवनेस मींस डूइंग द राइट थिंग, स्पेंडिंग फंड्स सो एज टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव. इफेक्टिवनेस डील्स विद द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव. सो ये डेफिनेशन करेक्ट है. तो इनकरेक्ट हुई ये. Which of the following is a problem associated with the managerial reward system? आप बताइएगा. मैं ऑप्शंस पढ़ देती हूँ. By rewarding performance and effective schemes creates an organization focused on the continuous improvement.
Schemes based on these shares can motivate the employees managers to act in the long term interest of the company. Self interest performance may be encouraged at the expense of the teamwork. Effective schemes attract and keep the employees valuable to an organization. मैनेजर रिवॉर्ड स्कीम के लिए कौन सी प्रॉब्लम है? मैनेजर रिवॉर्ड स्कीम की प्रॉब्लम फर्स्ट वाली तो नहीं हो सकती, क्योंकि उससे अगर इफेक्टिव स्कीम आएगी तो कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन की इम्प्रूवमेंट होएगी, उससे कोई हानि नहीं पहुंचेगी। अगर हम एम्प्लॉयज को मोटिवेट करते रहेंगे, उनको शेयर्स देंगे, तो उससे भी मैनेजर रिवॉर्ड स्कीम की कोई हानि नहीं होगी। जहां पर खुद का इंटरेस्ट आ जाता है तो आती है कॉन्फ्लिक्ट की बारी, और अगर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हुआ तो दैट्स अ प्रॉब्लम। सो द राइट आंसर इज सेल्फ इंटरेस्ट परफॉर्मेंस मे बी एनकरेज एट द एक्सपेंस ऑफ द टीम वर्क। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक हमारे पास बहुत अच्छा सा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन आ गया है, तो जिन लोगों के पास कैलकुलेटर नहीं है प्लीज कैलकुलेटर ले आइए और वीडियो पॉज करके, तो हम स्टार्ट करते हैं। Question number 6. Last year, ABC company made a profit before tax of 26,28,000. Tax amounted to 7,88,000. ABC company share capital was 20 lakh of $1 each and 40 lakh of 6% preference share. What was the earning per share for the year? हमें EPS निकालना है। EPS का फॉर्मूला क्या होता है? Earning attributable to the equity shareholders divided by the total number of equity shares. हमें शेयर कैपिटल दे रखी है 20 लाख इक्विटी शेयर्स की। ठीक है, शेयर कैपिटल दो पार्ट में बाइफर्केटेड है, और उसके बाद हमें अर्निंग पर शेयर निकालनी है। अर्निंग पर शेयर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले पीबीआईटी जो कि दे रखा है 26,28,000, उसमें से माइनस करेंगे हम टैक्स का अमाउंट। ठीक है, दैट इज 7,88,000, और उसमें से अपन माइनस करेंगे प्रेफरेंस शेयर्स को जो हम डिविडेंड दे रहे हैं, क्योंकि सोलली अपन को क्या निकालना है, अर्निंग हम जो एट्रीब्यूट करेंगे इक्विटी शेयर होल्डर्स को। तो प्रेफरेंस शेयर्स को हम जितना पैसा दे रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड वो हम हटाएंगे। ठीक है, वो कैसे हटाएंगे, 40 लाख का 6% जो कि आएगा 2,40,000। तो इसको अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे पीबीआईटी से, तो हमारे पास अर्निंग एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स आ जाएगी, जो कि आएगी 16 लाख डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स दैट इज इक्वल्स टू 20 लाख। तो आंसर आ गया हमारे पास 80C। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 होगा, तो हमें उसमें बताना है कि जो हमारे पास दो स्टेटमेंट दे रखे हैं whether they are true or false. So the first statement is the financial management functions makes a decision related to the finance. तीन डिसीजंस जो कि बहुत फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स के जो लिए जाते हैं फाइनेंशियल मैनेजर ही लेता है, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग एंड डिविडेंड। तो फर्स्ट वाला क्या है, ट्रू है या फॉल्स? ट्रू। सेकंड स्टेटमेंट है मैनेजमेंट अकाउंट्स इनकॉर्पोरेट नॉन मॉनेटरी मेजर्स। मैनेजमेंट अकाउंट्स के कोई सेट रूल्स नहीं होते, हमने पढ़ा था। मैनेजमेंट अकाउंट्स प्रिपेयर्ड बाय द मैनेजर्स, इंटरनल कंट्रोल के लिए वो देखते हैं। ठीक है, तो उसमें मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी मेजर्स भी देखे जाते हैं। ओवर टाइम हो रहा है नहीं हो रहा है ये भी तो देख रहे थे हमने, याद है पिछले वीडियो में एक क्वेश्चन किया था ओवर टाइम का। तो वो ये सब क्या है, नॉन मॉनेटरी मेजर्स। तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। अब क्वेश्चन नंबर 8 आता है, उसमें अपन को पीई रेशियो निकालना है। पीई रेशियो का क्या फॉर्मूला था, प्राइस अर्निंग रेशियो। प्राइस क्या थी, मार्केट प्राइस। कौन सी मार्केट प्राइस, एक्स मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग। सो अ कंपनी हैज डिक्लेयर्ड अ डिविडेंड ऑफ 12C per share, C is cents sorry, तो दैट इज इक्वल्स टू 0.12। ठीक है, 100 से डिवाइड करते हैं अगर सेंट्स होता है तो। द शेयर प्राइस इज $3.72 कम डिविडेंड। कम डिविडेंड में क्या होगा, डिविडेंड का पार्ट इंक्लूडेड है, तो हमें इसको एक्स डिविडेंड करना पड़ेगा। प्राइस अर्निंग रेशियो का अभी अभी मैंने फॉर्मूला बोला था, और इसके पीछे का लॉजिक बता रखा है मैंने प्रीवियस वीडियो में कि एक्स डिविडेंड क्यों लेते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, सबसे पहले अपन 3.72 माइनस करेंगे 0.12, तो प्राइस आ जाएगी एक्स डिविडेंड दैट इज 3.60 डिवाइडेड बाय अर्निंग विच इज गिवन टू अस 60C। अगर इसको अपन इससे डिवाइड कर देंगे, इंटू 100 कर देंगे, we'll get our answer
जस्ट अ मिनट, 3.60 डिवाइडेड बाय 60, हाँ, इंटू 100 अगर हम कर देंगे दैट इज इक्वल्स टू 6। ठीक है, आंसर आ गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आराम से समझिएगा। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेट्स टू द ऑर्डिनरी शेयर ऑफ जी कंपनी लिमिटेड। हमें अर्निंग पर शेयर दे रखी है, हमें डिविडेंड दे रखा है, हमें पब्लिश डिविडेंड यील्ड दे रखा है, और हमें क्या निकालना है, ऑर्डिनरी शेयर्स की प्राइस निकालनी है। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि डिविडेंड कवर क्या होता है, नाम में ही मतलब छुपा हुआ है। ठीक है, डिविडेंड क्या होगा, डिविडेंड कितना कवर हो रहा है, किससे कवर होता है डिविडेंड, अर्निंग से डिविडेंड कवर होता है। अर्निंग्स के ऊपर ही तो, अर्निंग्स से ही तो हम डिविडेंड पर शेयर निकालते हैं। तो अर्निंग डिवाइडेड बाय डिविडेंड पर शेयर इज डिविडेंड कवर। डिविडेंड कवर में क्या होता है, सॉरी अर्निंग पर शेयर है ये, डिविडेंड कवर में क्या होता है, हम देख रहे हैं कि हमारी अर्निंग डिविडेंड को कितने टाइम से कवर कर पा रही है। ठीक है, दैट इज डिविडेंड कवर। डिविडेंड यील्ड तो अपन ने पहले ही डिस्कस कर लिया था, क्या होता है डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय क्या करेंगे अपन, मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस कौन सी होगी, एक्स मार्केट प्राइस, रीजन हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था। ठीक है, तो आपको थोड़ा थोड़ा तो बहुत पता चल ही गया होगा कि हम मार्केट प्राइस कैसे निकालेंगे, फर्दर डिस्कस करते हैं। ठीक है, हमारे पास है क्या है, हमारे पास डिविडेंड कवर है, हमारे पास अर्निंग पर है, तो अर्निंग है तो हमारे पास क्या, हमारे पास क्या आ जाएगा इससे, डिविडेंड पर शेयर। तो डिविडेंड पर शेयर मैं लिख सकती हूँ ऐसे, डिविडेंड पर शेयर इज इक्वल्स टू अर्निंग डिवाइडेड बाय डिविडेंड कवर। ठीक है, ये रेशियोज के थोड़े बहुत लॉजिक्स होते हैं जो कि बचपन में हमें सिखाए जाते हैं, तो इनके ऊपर मैं डिटेल डिस्कशन तो नहीं कर पाऊंगी। सो आ जाते हैं अपन डायरेक्टली। तो अर्निंग दैट इज 60C डिवाइडेड बाय 2.5, ये हमारे पास आ जाएगा डिविडेंड पर शेयर, दैट इज इक्वल्स टू 24। और उसके बाद हमारे पास डिविडेंड पर शेयर आ गया, हमें मार्केट प्राइस निकालनी है, तो मार्केट प्राइस को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, मार्केट प्राइस इक्वल्स टू dividend per share divided by published dividend yield. तो dividend per share that is equals to 24 divided by 4.8%, ठीक है, which is equals to 4.8% से डिवाइड करेंगे 24 divided by 4.8%, which is equals to 500C. C means cents. So answer is 500C. Question number 10th. Which of the following is the most appropriate and of an objective of non-profit organization? Non-profit organization works for only for the charity purpose. ठीक है, तो हमें देखना है कि कौन सी appropriate बैठता है इसमें। To achieve the long-term growth in the earning तो purpose ही नहीं होता non-profit organization का, तो पहला वाला incorrect. To maximize the shareholders wealth, शेयरहोल्डर्स वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ही नहीं करना है, क्योंकि कंपनी थोड़ी रन कर रहे हैं अपन। टू मेक एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, यस 3 ईज का पार्ट है ये, एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, याद आया। टू मिनिमाइज द इनपुट कॉस्ट, ये भी एक अप्रोप्रिएट ऑप्शन है, लेकिन हमें हमें क्या पूछा जा रहा है, मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। So the most appropriate option is to make an efficient use of resources, just because of the fact it is covered in the 3 E's. So answer is to make efficient use of resources. आगे बढ़ते हैं, question number 11. Which of the following are the three areas covered by the financial management decisions which we have already discussed? Investment, finance and dividend. So we are not wasting time in this question. Okay. Question number 12 deals with which of the following does not form the part of the objectives of the corporate governance best practice method. Corporate governance क्या होता है, पहले भी अपन ने डिस्कस किया था, अभी भी थोड़ा बता देती हूँ कि गवर्नेंस अकॉर्डिंग टू द स्टेक होल्डर्स डिजायर्स इज कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि कौन सा ऑब्जेक्टिव का पार्ट नहीं होगा। सेपरेशन ऑफ द चेयरपर्सन एंड सीईओ लेवल, अगर हम चेयरपर्सन और सीईओ लेवल को सेपरेट करेंगे तो मैनेजमेंट बहुत अच्छे से रन होएगा। So it's an objective or a part of a corporate governance practice. ठीक है, establishment of audit, nomination and remuneration committee.
एक बिजनेस को अच्छे से रन करने के लिए ये सारी कमिटीज यूज भी होती है। कंपनीज एक्ट 2013 में ये स्पेशली डिफाइंड भी है कि कौन सी कंपनी अगर इस कैडर में फॉल कर रही है तो इन सारी चीजों इन सारी कंपनीज को ये कमिटीज बनानी पड़ेंगी। तो एक गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए ये सारी प्रैक्टिस यूज होते हैं। ठीक है। मिनिमाइजेशन ऑफ रिस्क। आप बिजनेस कर रहे हैं ना, तो अगर बिजनेस कर रहे हैं तो रिस्क तो होगा ही ना। अगर बिजनेस नहीं करना होता, अगर रिस्क नहीं झेलना होता तो बिजनेस ही ना करिए ना। तो आंसर आपको थोड़ा बहुत हिंट मिल ही गया होगा मेरे इस तरीके से बोलने से कि मिनिमाइजेशन ऑफ रिस्क इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ अ कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिस, बिकॉज रिस्क के बेसिस पे ही, रिस्क के ऊपर ही तो हम बिजनेस करते हैं। Employment of non-executive directors is a part of a corporate governance which is covered in the Companies Act as well. ठीक है? Answer is minimization of risk. Let's move further. Question number 13, an important question. The following information relates to the A company for the last financial year. Revenue दे रखा है हमें, asset turnover ratio दे रखा है, interest payable दे रखा है हमें 1.5 million और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो दे रखा है। हमें आरओसी निकालना है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का क्या फॉर्मूला था? पीबीआईटी अपॉन क्या? कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या होता है। जैसे अपने डिविडेंड कवरेज रेशियो पढ़ा था ना कि डिविडेंड को डिविडेंड अर्निंग से कितने टाइम्स में कवर हो पा रहा है, ऐसे ही इंटरेस्ट कवरेज रेशियो होता है कि कंपनी की जो प्रॉफिट्स हैं वो कितने टाइम्स में इंटरेस्ट के थ्रू कवर हो पा रहे हैं। ठीक है। तो पीबीआईटी अपॉन इंटरेस्ट पेबल, इसका पूरा फॉर्मूला ये होता है। असेट टर्नओवर रेशियो अपन ने डिस्कस किया था कि हमारी असेट हमारे रेवेन्यू में, सेल्स रेवेन्यू में कितनी पार्ट दे पा रही है, कितनी मदद कर पा रही है। तो सेल्स रेवेन्यू डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इज द फॉर्मूला ऑफ असेट टर्नओवर रेशियो। ठीक है। अब हमें ये सारी चीजें पता चल गई तो अब तो क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो ही जाएगा। ठीक है। सो सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, सेल्स रेवेन्यू डिवाइडेड बाय असेट टर्नओवर रेशियो। ठीक है। तो 200 डिवाइडेड बाय 10 दैट इज इक्वल्स टू 20। और उसके बाद अपन निकालेंगे पीबीआईटी। पीबीआईटी को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, पीबीआईटी इज इक्वल्स टू इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इनटू इंटरेस्ट पेबल। 5 into 1.5 that is equals to 7.5. So we got the PBIT, we got the capital employed, so ROI, ROC आ गया हमारे पास 7.5 divided by 20 into 100. So we got the answer. The answer is 37.5. ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर। a school decided to have larger classes and the examination results suffer as a result. मतलब अगर क्लासेस हम बड़ी करने लग गए ना तो हमारे एग्जामिनेशन रिजल्ट सफर कर रहे हैं। इन टर्म्स ऑफ अ वैल्यू ऑफ फॉर मनी फ्रेमवर्क विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। हमें देखना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है या गलत है। अब है ना, इस क्वेश्चन को करने से पहले हम एक चीज समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि है ना, हमारे स्कूल में ना 3 सेक्शंस हुआ करते थे, ए सेक्शन, बी सेक्शन, सी सेक्शन। तो उन सेक्शंस को अलग करने के लिए रीजन क्या होता था कि कम बच्चे होते हैं ना और टीचर एक होता है तो अच्छे से समझ पाते हैं, क्योंकि टीचर्स उनकी प्रॉब्लम्स को भी डील कर लेते हैं। अगर तीनों सेक्शंस को मर्ज करके हम एक क्लास में बिठाते और फिर टीचर पढ़ाता तो उससे क्या होता, क्लास बड़ी हो जाती। अब उसको 3 E's के हिसाब से सोचना स्टार्ट कर दीजिए। क्लास बड़ी हो जाती तो हमारी इकोनॉमी कम हो जाती। इकोनॉमी कम हो जाती मतलब समझ रहे हैं आप कि है ना, कम पैसे में हमें काम हो रहा है हमारा। इकोनॉमी का तो मतलब यही था कि कम पैसे में काम होना। कम इकोनॉमी अचीव हो गई, इफेक्टिवनेस अचीव हुई नहीं हुई। इफेक्टिवनेस से पहले अपन आ जाते हैं एफिशिएंसी पे। एफिशिएंसी क्या होता है? इनपुट आउटपुट रेशियो। इनपुट आउटपुट रेशियो अफेक्ट नहीं होगा। मतलब मान लीजिए कि एक टीचर बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा है तो इनपुट आउटपुट रेशियो इफेक्टिव बन जाएगा ना, कि एक टीचर 100 लोगों को पढ़ा रहा है, जो कि एक टीचर पहले 10 लोगों को पढ़ाया करता था। ठीक है। तो एफिशिएंसी भी इंक्रीज हो गई। अब देखते हैं, आते हैं इफेक्टिवनेस। इफेक्टिवनेस डील्स विद कि आपके ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो पा रहे हैं नहीं हो पा रहे हैं।
तो अगर क्लास बड़ी हो जाएगी तो एग्जामिनेशन रिजल्ट हिंडर करेगा, ये क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है। अल्टीमेटली तो यही चाहते हैं ना कि हम ज्यादा से ज्यादा आउटपुट आए। स्कूल तभी ग्रो करेगा ना कि पासिंग परसेंटेज जब तक ज्यादा नहीं आएंगी। तो अगर जब तक पासिंग परसेंटेज ज्यादा नहीं आएगी स्कूल ग्रो नहीं कर पाएगा, तो इफेक्टिवनेस डिक्रीज हो रही है। पूरा क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर लिया, ऑप्शंस आप आराम से पढ़िए, आपको आंसर अपने आप समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आंसर इज इकोनॉमी हैज इंक्रीज एंड इफेक्टिवनेस हैज डिक्रीज। 15 क्वेश्चन, एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन वापस से। एच कंपनी शेयर प्राइस इज 3.50 एट द एंड ऑफ 2001 and this includes a capital gain of 0.75. The amount is included, capital gain is included in the share price, mind it. Share since the beginning of the period, a dividend of 0.25 has been declared for the 2001. What is the shareholders return? हमें शेयर की रिटर्न, शेयर की रिटर्न निकालनी है। तो शेयर होल्डर की रिटर्न निकालने के लिए क्या करते हैं अपन, शेयर होल्डर की जो हमें शेयर होल्डर्स को जो मिला उसको डिवाइड करते हैं अपन शेयर प्राइस से। लेकिन शेयर प्राइस में कुछ चीज इंक्लूड नहीं होनी चाहिए, मतलब कैपिटल गेन भी इंक्लूड नहीं होना चाहिए और डिविडेंड का पार्ट भी इंक्लूड नहीं होना चाहिए। तो फॉर्मूला क्या हुआ, डिविडेंड, डिविडेंड अपन ऐड करेंगे 2.25 जो कि गिवन है, और कैपिटल गेन 0.75, डिविडेंड प्लस कैपिटल गेन divided by share price. The share price should exclude the capital gain and dividend amount. So it's given in the question that it includes the capital gain amount. So we have to exclude the same. Into 100, we got the shareholder return. ठीक है? So पहले अपन denominator से solve करना चालू करते हैं। 3.50 minus 0.75 which is equals to 2.75. So 0.25 plus 0.75 which is in the numerator, we got the 1 divided by 2.75 into 100, we got the answer 36.4. Oops, आंसर तो पहले से ही लिखा हुआ था, कोई बात नहीं। आगे बढ़ते हैं। स्टेक होल्डर्स, क्वेश्चन नंबर 16, द स्टेक होल्डर्स कैन बी क्लासिफाइड एज इंटरनल, कनेक्टेड एंड एक्सटर्नल. Which of the following is not external shareholders? Which of the following is not me? Which of the following is an external shareholders? तो हमने स्टेक होल्डर्स को 3 कैटेगरी में कैटेगराइज किया था, इंटरनल, कनेक्टेड एंड एक्सटर्नल। तो इंटरनल में अपन ने देखा था कि जो इंटरनली कनेक्टेड है एम्प्लॉइज, पेंशनर्स, मैनेजर्स। कनेक्टेड में अपन ने क्या देखा था कि जो हमारे कंपनी को इन्फ्लुएंस करते हैं थोड़ा बहुत। कौन कौन करते हैं, बैंकर्स करते हैं, सप्लायर्स करते हैं, कस्टमर्स करते हैं, ठीक है। तो एक्सटर्नल कौन हुआ, गवर्नमेंट, रेगुलेटरी बॉडीज एंड प्रोफेशनल बॉडीज, ये सारे एक्सटर्नल में अपन ने कवर किए थे। तो एक्सटर्नल में कौन आ गया, गवर्नमेंट आ गया। क्वेश्चन नंबर 17, अ गवर्नमेंट बॉडी uses measures based upon the 3 E's to measure the value of for money by a publicly funded hospital, ठीक है। Which of the following relates to the efficiency? Efficiency अपन ने क्या देखा था कि input output ratio। तो अपन 3 E's को आराम से सोचेंगे इस क्वेश्चन को लेके और उसके बाद आंसर निकालेंगे। अब पब्लिकली फंडेड हॉस्पिटल है तो इकोनॉमी क्या अचीव होएगी, इकोनॉमी अचीव होएगी जब आप कॉस्ट रिड्यूस कर रहे हैं ऑपरेशन का, ठीक है। क्योंकि इकोनॉमी का मतलब ही होता है कि कॉस्ट रिडक्शन। इफेक्टिवनेस कैसे अचीव होएगी, इफेक्टिवनेस अचीव होएगी कि आपका आउटपुट सही से बेहतर तरीके से आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर पेशेंट सही से इलाज नहीं हुआ तो आप उनको वापस से रीएडमिट कर रहे हैं और उनका सही से इलाज कर रहे हैं, वो आते हैं इफेक्टिवनेस से। एफिशिएंसी इज इनपुट आउटपुट। तो इनपुट मतलब आपका इनपुट और आउटपुट का रेशियो सही होना चाहिए, मतलब कि आप कॉस्ट जो आपकी आए वो कम से कम आए लेकिन पेशेंट सक्सेसफुली ट्रीट हुए, दैट इज एफिशिएंसी। सो इसमें अभी अपन ने पूरा तीनों डिस्कस कर लिया। अब अपन क्वेश्चंस, अब ऑप्शंस पढ़ेंगे और देखेंगे कि आंसर्स क्या क्या आता है। कॉस्ट पर सक्सेसफुली ट्रीटेड पेशेंट, एफिशिएंसी है या नहीं आप सोचिए। कॉस्ट पर ऑपरेशन, proportion of patients readmitted after unsuccessful treatment, percentage change in doctor's salary compared to the previous year। इससे सबसे फालतू ऑप्शन मैं आपको बता देती हूँ आपकी हिंट के लिए, वो है ये, बिल्कुल भी सोचेगा नहीं।
3 E's में से एफिशिएंसी किसके आ रहा है वो आप देख लीजिएगा। मैंने अभी 2 मिनट पहले डिस्कस किया था, शायद आंसर आपको पता चल गया होगा। आंसर है कॉस्ट पर सक्सेसफुल ट्रीटेड पेशेंट, डिस्कस कर लिया था मैंने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 होना चाहिए, वापस से 17 आ गया, बट कोई बात नहीं। In a non-for-profit businesses and state-run entities, a value for money audit can be used to the measure performance. ठीक है। It covers the 3 key areas: economy, efficiency and effectiveness. Which of the following could be described as effectiveness? अभी पहले अपन ने क्या describe किया था? efficiency. अब अपन को निकालना है effectiveness. effectiveness में क्या बोला था मैंने कि आउटपुट संग से आ रहा है या नहीं आ रहा, तो उसको सोचकर आप जवाब दीजिएगा इसका। Avoid waste of inputs, achieving agreed targets, achieving a given level of profit, obtaining a suitable quality input at the lower price. Answer: achieving agreed targets. ये होगा इसका आंसर, क्योंकि आपके टारगेट्स आप अचीव कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे, आउटपुट फोकस्ड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, which of the following statement are valid criticism of return on capital employed as a performance measure? valid criticism हमें देखना है, ठीक है। तो हमें ये देखना है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है या नहीं है। इट इज मिसलीडिंग इफ यूज्ड टू कंपेयर डिपार्टमेंट विद डिफरेंट लेवल ऑफ रिस्क। आरओसी मिसलीडिंग इसलिए है क्योंकि डिफरेंट लेवल ऑफ रिस्क है। हाँ, आरओसी तभी आपको वर्थ और क्लियर और अच्छे रिजल्ट देगा जब आपके है ना रिस्क लेवल सेम होगा। अगर रिस्क लेवल सेम हुआ तो आप उस इंडस्ट्री में अगर आरओसी कंपेयर कर पा रहे हैं तो आपका आंसर सही आएगा, और नहीं तो फिर आपको मिसलीडिंग रिजल्ट मिलेंगे। इट इज मिसलीडिंग if used to compare department with asset at different ages of the assets को अगर हम हम अगर कंपेयर करेंगे तो वो मिसलीड होगा। हाँ, एक डिपार्टमेंट है उसके पास अभी अभी वो खुला है और उसके है ना असेट्स अभी अभी नया है, और एक डिपार्टमेंट है जो कि 10 साल से चल रहा है तो उसके असेट्स पुराने हो चुके हैं। आप सोच रहे होंगे कि मिसलीडिंग कैसे हुआ। मिसलीडिंग इसलिए हुआ क्योंकि प्रॉफिट कम आएगा ना। जो अगर पुराने असेट्स के साथ अगर कंपनी चल रही है तो उसका प्रॉफिट कम आएगा। क्यों कम आएगा? क्योंकि एसेट डिप्लीट हो चुके हैं। एसेट डिप्लीट हो चुके हैं तो उस हिसाब से वो प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे होंगे ना। तो हाँ, ये भी सही है। इट may discourage the investment in the new and replacement assets। अगर अपन आरओसी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का अगर अपन यूज करेंगे तो उससे इन्वेस्टमेंट न्यू प्रपोजल्स में है ना चेंज होगा नहीं होगा? ऑब्वियसली चेंज होगा। आरओसी क्या करता है, देखता है कि हमारी कैपिटल से कितनी रिटर्न आ रही है। अगर अभी हमारी एक्ट रिटर्न आ रही है तो ऑब्वियसली हम नए प्रोजेक्ट्स में पैसा नहीं डालेंगे या रिप्लेस नहीं करेंगे अपनी एसेट्स को, ठीक है। The figures needed are not easily available। आरओसी के फिगर्स बहुत आराम से मिल जाते हैं, प्रॉफिट्स भी आराम से मिल जाता है। कैपिटल एम्प्लॉयड तो टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज होता है, जो कि प्रॉफिट जो कि हमारे बिजनेस का ही पार्ट होता है, तो इनके तो आराम से फिगर्स मिल जाते हैं। तो व्हाट इज द आंसर? 1, 2 and 3, दैट्स द करेक्ट क्रिटिसिज्म। क्वेश्चन नंबर ये एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। इसके बाद मतलब ये एक एनालिसिस करेंगे हम इसका, और उसके बाद फिर इसके क्वेश्चंस 2 से 3 क्वेश्चंस और हैं हमारे, 4 क्वेश्चंस और हैं, और इसके बाद हम हमारा ये क्वेश्चन आंसर्स का वो जो जोन था वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। द फॉलोइंग समरी ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एबीसी कंपनी की समरी दे रखी है, 2 ईयर्स के कंपैरिजन दे रखे हैं, 2019 और 2018 का। हमें स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का एक्सट्रैक्ट दे रखा है। एक्सट्रैक्ट क्या होता है? छोटा सा पार्ट उसका, प्रॉफिट एंड लॉस। रेवेन्यू दे रखा है हमें, कॉस्ट ऑफ सेल्स दे रखा है, सैलरीज एंड वेजेस दे रखे हैं, अदर कॉस्ट दे रखा है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स दे रखा है, इंटरेस्ट दे रखा है, टैक्स दे रखा है, प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स दे रखा है, डिविडेंड पेबल दे रखा है, ठीक है। हमें स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशंस भी दे रखी है, शेयर होल्डर्स के फंड्स दे रखे हैं, लॉन्ग टर्म डेट दे रखे हैं। आगे बढ़ते हैं। अदर इन्फॉर्मेशन जो हमें दे रखी है, नंबर ऑफ द शेयर्स दे रखे हैं, जो इशू हो रखे हैं वो 14,000 और 1000 के मल्टीपल्स में है। पी रेशियो दे रखा है हमें, एबीसी कंपनी का 40 है, 2018 का 13
14 है 2019 का और 13 है 2018 का। इंडस्ट्री का हमें पीई रेशियो दे रखा है, शेयर होल्डर इन्वेस्टमेंट ईपीएस दे रखा है, हमें शेयर प्राइस दे रखा है, डिविडेंड पर शेयर दे रखा है। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द क्वेश्चन। What is the percentage increase in the return on capital employed? We have to derive the return on capital employed की परसेंटेज इंक्रीज, तो मतलब हमें 2019 की भी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय निकालनी पड़ेगी और 2018 की भी कैपिटल एम्प्लॉय निकालनी पड़ेगी। उसके बाद फिर हम कंपेयर करेंगे कितना इंक्रीज हुआ है। तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला अभी अभी हम डिस्कस करके आ ही रहे हैं, दैट इज पीबीआईटी डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम कैपिटल एम्प्लॉय निकाल लेते हैं दोनों कंपनीज का। कैपिटल एम्प्लॉयड की जो हमें इंफॉर्मेशन दे रखी है वो है पीबीआईटी दे रखा है 2019 का, हमें दे रखा है 14749। हम डिवाइड करेंगे इसको किससे, कैपिटल एम्प्लॉयड से। तो कैपिटल एम्प्लॉयड हमारे पास कितना दे रखा है। कैपिटल एम्प्लॉयड को निकालने के दो तरीके होते हैं। एक बार क्या करेंगे हम, टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज, और दूसरा तरीका क्या होता है, शेयर होल्डर्स फंड्स प्लस लॉन्ग टर्म डेब्ट। तो इधर हमें एडिशन पार्ट दे ही रखा है, दैट इज 53,900 इन द ईयर 2019। सो वी विल डिवाइड द सेम 53,900। सो जो हमें रिटर्न ऑन कैपिटल मिला, एम्प्लॉयड मिला 2019 का, दैट इज 27.4, याद रखिएगा। और जो हम रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 2018 का निकाल रहे हैं, दैट इज पीबीआईटी, हमें दे रखा है 13,506 divided by 52587 into 100, 25.68। और इसका हमें उससे पहले हमारे पास क्या आया था 20, मैं भूल गई, एक मिनट, 7.9 divided by 53900, 27.3। मैं एक बार लिख ही लेती हूँ। तो 2019 का आया अपने पास 27.3 और 2018 का अपने पास आया था 2018 वापस से कर लेते हैं, 13,506 डिवाइडेड बाय 52587 into 100, that is equals to 25.68. So we have to see the percentage increase। percentage increase कैसे निकालेंगे अपन, 2019 का जो आरओसी आया उसमें अपन 2018 का आरओसी माइनस कर देंगे और उसको अपन बेस ईयर से डिवाइड करेंगे। किसी भी चीज का अगर हमें परसेंटेज इंक्रीज या परसेंटेज डिक्रीज निकालना होता है तो जिस ईयर से हम कंपेयर कर रहे हैं ना उसको अपन डिनोमिनेटर में रखते हैं, उसको बेस ईयर कहा जाता है। उसको डिनोमिनेटर में इसलिए रखा जाता है क्योंकि उससे हम कंपेयर कर रहे हैं ना। तो डिवाइड बाय 25.68 into 100। तो इसको सॉल्व करते हैं, 27.3 minus 25.68 divided by 25.68 into 100, that is equals to 6.308 आ रहा है। So it would be approx 6.7 आंसर होगा इसका, ठीक है, क्योंकि वो इसके अप्रोक्स से आ रहा है ना, 6.2 इसलिए नहीं है क्योंकि 6.30 आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। What is the net profit margin for the year 2019? We have bifurcated it, the two parts of return on capital employed, which is profit margin into asset turnover. तो profit margin क्या होता है, profit margin कैसे define करते हैं अपन, profit margin होता है profit divided by sales revenue, ठीक है। So हम निकालते हैं profit कितना है हमारे पास, profit है हमारे पास 2019 का 44749 divided by sales revenue that which is provided to us 74521 into 100, that is equals to 19.79। अब देखते हैं हमारा आंसर 19.8। we got the right answer। what is shareholders return? shareholders return dividend plus capital growth डिवाइड क्या करेंगे अपन, मार्केट प्राइस। श्योर, मार्केट प्राइस क्या होनी चाहिए, एक्स मार्केट प्राइस, ठीक है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि हमारे डिविडेंड कितने हैं। डिविडेंड हमें दे रखा है 2019 का 0.34, ठीक है।
और शेयर प्राइस में कैपिटल ग्रोथ हुई है 8.82, मतलब जो कि पहले शेयर था 7.41, वो हो गया है अब 8.82, तो 1.41 का इंक्रीज हुआ है, प्लस 0.34 हमारा डिविडेंड, दैट इज इक्वल टू 1.75, जो कि हमारा न्यूमरेटर का पार्ट है, जो कि हमने कवर कर दिया, डिवाइडेड बाय क्या था क्या था क्या था, शेयर प्राइस, है ना। तो शेयर प्राइस किसका लेंगे, कौन सा लेंगे, शेयर प्राइस हम बेस ईयर का लेंगे, क्योंकि तभी तो हमें पता चलेगा कि ग्रोथ कितनी हुई है, रिटर्न कितना मिला है। तो बेस ईयर कौन सा हुआ, 2018 हुआ, दैट इज इक्वल टू 7.41 into 100. We got the answer 23.6. Let's see which is correct or not, and congratulations, we got the right answer. Last question. As well as the information above, the following extra data is available. गेयरिंग दे रखा है, डेट अपॉन इक्विटी 2008 और 2007 का, मतलब इसमें हमें 2008 2007 कुछ ना कुछ मिसलीडिंग ईयर्स, ओके दैट इज 2019 एंड 2018, टू बियर विद दैट। और इंटरेस्ट कवर दे रखा है, पीबीआईटी अपॉन इंटरेस्ट हमें दे रखा है, ठीक है, गेयरिंग दे रखा है, इंटरेस्ट कवर दे रखा है। बेस्ड ऑन द अबव इन्फॉर्मेशन हमें बताना है कि फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। एम्प्लॉइज में बी अनहैप्पी विद द वेजेस ऑफ 2008, 2008 को हम क्या पढ़ेंगे 2019, ठीक है। ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया मुझसे, इनकरेक्ट टाइपिंग हो गई मुझसे, ठीक है। तो एम्प्लॉइज हैप्पी हैं या अनहैप्पी हैं, तो हम देख लेते हैं कि वेजेस कितनी बड़ी हैं 2018 के कंपैरिजन में एम्प्लॉइज की, तो हमें पता चलेगा ना कि एम्प्लॉइज खुश हैं या दुखी हैं। और एक बार सेकंड स्टेटमेंट भी देख लेते हैं। फाइनेंशियल रिस्क ऑफ द शेयर होल्डर्स अपीयर्स टू बी अ प्रॉब्लम एरिया। गेयरिंग कम हुई है, गेयरिंग अगर कम हुई है तो शेयर होल्डर्स की अर्निंग बढ़ रही है ना, तो उससे, और अपन ने ये भी देखा कि शेयर होल्डर्स को रिटर्न भी अच्छा खासा मिल रहा है। तो अगर हम कंपेयर कर लेते हैं दोनों स्टेटमेंट को कि कौन सा गलत है, तो एम्प्लॉयज खुश हैं या गलत है, एम्प्लॉयज को एम्प्लॉयज खुश हैं या दुखी हैं। तो एम्प्लॉयज को पहले सैलरी मिली थी 20,000 की, और अब 2018 में मिली है 90,000 अप्रॉक्स। तो बेस ईयर पे अपन इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेते हैं। सबसे पहले माइनस करते हैं 19,562, मतलब 20,027 माइनस 19,562 किया है, डिवाइडेड बाय बेस ईयर करेंगे, बेस ईयर 2019 है, क्योंकि हम दिखा रहे हैं कि कितना इंक्रीज या डिक्रीज आया है। तो डिवाइडेड बाय 19,562 into 100, तो एम्प्लॉयज के सैलरी में 2.4% का इंक्रीज आया, जो कि बहुत कम है शेयर होल्डर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, क्योंकि उनका इंक्रीज तो 23.6 है, जो कि अपन ने अभी अभी निकाला था। तो कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, एम्प्लॉयज में भी अनहैप्पी विद देयर वेजेस इन 2019, ऑब्वियसली, क्योंकि 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 इनको जो हाइक मिलना चाहिए था वो इतना प्रॉपर नहीं मिल पाया है। That's come there, and here we comes to the end of our this video as well. Thank you, and आपके जो भी कमेंट हो, आपको पसंद आया, जैसा भी लगा, आप प्लीज हमारे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिएगा। और डू विजिट आवर वेबसाइट, which is the link is shared in the same www.foundationlearning.in, to like, share, comment and subscribe our channel Foundation Learning, and और वीडियोस भी जल्दी अपलोड होंगे। आज तो चैप्टर 1 पूरा कंप्लीट किया है, जिसमें हमने पहले पार्ट में चैप्टर की समरी देखी थी, चैप्टर पूरा कवर किया था, थ्योरी पार्ट कवर किया था, और आज हमने क्वेश्चन आंसर्स कर लिए इसके। तो आगे हम एक एक चैप्टर जरूर जरूर कवर करते जाएंगे, जल्दी जल्दी कवर करते जाएंगे विद द क्वेश्चन आंसर्स। सो थैंक यू सो मच गाइस, टिल देन, signing off, bye.